So, greetings to everybody. I'm really sorry for the time that I lost in my computer. आप सबको मैं एक दफा फिर सलाम पेश करती हूँ और मैं माजरत चाहता वो जो हम जाया हो गए कुछ तकनीकी मसला था जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है. And since we have only half an hour, I'm going to finish what have started last week. And I was talking at the end of the time of the different types of theology. और जैसे कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है तो हमने जैसे पिछली दफा देखा था कि मुख्तलिफ जो थियोलॉजी की इकसाम है उनके ऊपर जैसे हमने पिछले हफ्ता वो गौर कर रहे थे उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे. And I'll try to finish that lesson in the few minutes that we have this time. I want to give you 8 rules that you can apply when you start studying the Word of God, and especially in the exegetical work. Sorry, what you will supply them? Yes, Shakib, I don't have those rules in the text. I will send them to you. You know, they're not in the script that I sent you. Do you hear me? Oh. Yes, please. Okay. I don't. Did you get what I said? I don't have those rules in the transcript, but I think you know them probably. And yes, I know them. Yes. Okay. The first rule. There are 8 rules that are basic for every study of any text, and they can be used not only for the Bible but for any other studies. Mm-hmm. So I'm going to give them to you. Okay. And one day, if we have time, it should go. Go yes. ahead. अब देखें जरा हम किसी भी इक्तबास को चाहे वो बाइबल का है या चाहे वो किसी भी किताब का इक्तबास है या पैराग्राफ है उसको पढ़ने के लिए मैं 8 असूल आपको बताऊंगी. ये सिर्फ बाइबल के लिए नहीं बल्कि बाइबल के अलावा भी अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर भी ये रूल्स जो से असूल आप अप्लाई कर सकते हैं. And those are not on the script that I've sent. और ये जो से असूल हैं ये मैंने लिख कर तहरीर करके भेजे नहीं है. And but I will send them. I will. लेकिन जरूर हम जो से ना वो उसको कर सकते हैं. So आप इसको आप देख सकते हैं. So the first rule is what we call the rule of definition. पहला जो रूल है वो है तारीफ का रूल, definition का रूल. And that really applies whenever you want to study the Bible. If you want to study the Bible for a Bible study or for yourself or for a preaching, you can apply those rules at any time. सुनो जरा ये असूल वो हैं जो आप कभी भी बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल का मुतालिया करते हैं या किसी भी किताब का मुतालिया करते हैं तो ये रूल्स को असूलों को आप अपना सकते हैं जिसमें पहला असूल ये है कि तारीफ का असूल या डेफिनेशन. Yeah. And it means to look for the meaning of a word. इसका मतलब क्या है कि आप जो सा लफ्ज है उसका मतलब देखते हैं. And any study of the Bible must begin with a study of words. और अगरचे आप बाइबल का मुतालिया करना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप अल्फाजों की समझ रखें और अल्फाजों का मतलब या मानी जाने. And everyone who wants to work with the text must stay with the meaning of the words. और अगर कोई भी वो इक्तबास को समझना चाहता है तो इक्तबास को जो आपको कलाम का हिस्सा है उसको समझना चाहता है तो उसके लिए जो उसमें अल्फाज हैं उनका मतलब जानने की आपको सबसे पहली जरूरत है जो आपको जानना होगा. And of course you need to go back to the Hebrew or the Greek languages, and you have to find the dictionary that will
give you the right meaning of the sense or the sense in English. और आपको क्या करना है कि आप इसके मतलब के लिए आप अब्रानी में या यूनानी में डिक्शनरीज को देख सकते हैं और कि उस जुबान के अंदर इसका दर हकीकत असल मतन में मतलब क्या है, और आप इसके लिए गूगल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से आप मतलब को जानने की कोशिश करें कि ये जो अल्फाज है इसका मतलब, लफ्ज का मतलब क्या है। Oh, I lost my text. Okay. You just I give you one example. मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। It's the Greek word that is called allos. एक ग्रीक का लफ्ज है जो क्या है, अलोस, And then heteros. और फिर एक लफ्ज है इतिकोस। And in English, those two words are translated meaning another. और अंग्रेजी जुबान में जो इन दोनों लफ्जों का तर्जमा है वो है कि हुक्म। So एक हुक्म। we might think, okay, then that word is okay, it means another. Now in Greek, allos means another of the same type. अब देखें जरा कि यूनानी जुबान में अलोस जो सा उसका मतलब ये है कि एक ही किस्म की तरतीब या एक ही किस्म की चीजें उनके दरमियान जो सी है तरतीब, या एक ही उनके दरमियान तरतीब होना, एक ही जैसी चीजों के दरमियान। While heteros means another of a different type. अब जरा इतगोस जो सा लफ्ज है दूसरा एक यूनानी लफ्ज है, उसका मतलब अब ये है कि ऐसी चीजें जो एक जैसी या एक किस्म की ना हो उनके दरमियान तरतीब। अब ये यूनानी जुबान में दोनों का मतलब फर्क है। एक का मतलब है एक इकसाम की तरतीब और दूसरे का मतलब है मुख्तलिफ इकसाम की बातों की तरतीब। So you see, the Greek language is much richer than the English language. इसका मतलब यह है कि जो सी यूनानी जुबान है वो अंग्रेजी जुबान से ज्यादा वसी है और ज्यादा बड़ी है। And when we take just the word another, we miss sometimes the depth of what is there. और इसलिए जब हम सिर्फ अंग्रेजी में इसको तरतीब को लेते हैं तो इसमें हम बहुत सी जो गहरी बातें हैं उनको छोड़ देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमने असल जो मतन में बात लिखी गई थी यूनानी जुबान में या यूनानी में जो इस्तेमाल होता है उसको नहीं पढ़ा या अब्रानी में नहीं पढ़ा। So there are a lot of words in the Bible and in our language, modern language, that don't communicate the full meaning of what the Hebrew or the Greek were meant. और इसलिए हमारी दुनिया के अंदर हमारी अंग्रेजी जुबान और उर्दू जुबान में भी बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि दर हकीकत यूनानी और अब्रानी जुबानों का मुकम्मल खामे मुतालिया या मुकम्मल वजाहत पेश नहीं करते। वो बहुत जिसको कह सकते हैं ऊपर से उसका मतलब या सिर्फ उसका सादा सा मतलब बता देते हैं, गहरा मतलब नहीं बताते। So you see, just a little, I don't go deeper. In John 1:1, the word. और देखे जैसे योना की अंजील उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में जो लफ्ज वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कलाम इस्तेमाल हुआ है। We have one word in English. और देखें अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड है उसके लिए एक लफ्ज है। But I challenge you to go and study the Greek word logos, and you would be really surprised. सुने जरा, अब जो सा अंग्रेजी जुबान है उसमें सिर्फ कलाम के लिए एक लफ्ज है, वो है वर्ड। लेकिन जब आप यूनानी जुबान में जाते हैं तो जो लोगोस है उसका एक मतलब नहीं, उसके कई मतलब हैं। उसका मतलब सिर्फ कलाम नहीं है बल्कि कई मतलब है। लेकिन जब आप यूनानी पढ़ेंगे, यूनानी के अंदर समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि लोगोस के कितने मतलब बनते हैं। So don't be afraid to really spend time studying the words. और इसलिए खुदा के कलाम के को पढ़ने के लिए, उसके मुतालिया के लिए ज्यादा वक्त गुजारने में मत कतराएं, मत परेशान हो। And then the second rule is the rule of usage. दूसरा कानून,
पहला कानून तारीफ का कानून और दूसरा कानून है उसके इस्तेमाल का कानून। The Old Testament was written to and for Jews. 2 and 4 To and for the Jews. The Old Testament was written for the Jews. ओके और ये देखें पुराना अहदनामा वो दर हकीकत यहूदियों के लिए और उनके इस्तेमाल के लिए लिखा गया। And it was given so that they could understand it. और उनको इसलिए दिया गया ताकि वो समझ हासिल कर सके और समझ सके खुदा के कलाम को। Just as the word of Christ were spoken to people in Palestine at his time. और देखें जैसे मसीह लफ्ज जो है वो फलस्तीन या फिलिस्तीनियों के लोगों को उनको बताया गया। So it is important to understand the culture of those people, where they were living, how they were living, to understand the real meaning of a word that has been used. और इसलिए जब आप ये चाहते हैं कि उस लफ्ज का वो लफ्ज उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया और वो लफ्ज वहां पर क्यों इस्तेमाल हुआ, उसके लिए आप जाएं उन लोगों के ताल्लुक से पढ़ें कि उस वक्त में जो लोग थे वो कौन थे और क्यों उनके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। So we cannot put our understanding of one word to the Bible that has been written like 2000 or 3000 years ago. हम कभी भी बाइबल के एक लफ्ज को जो कि 2000 साल पहले लिखा गया आसानी से नहीं समझ सकते जब तक हम उसके इस्तेमाल को ना समझे कि क्यों उसको इस्तेमाल किया गया या क्यों उसको लिखा गया। So it is the study of the all context that is important to understand the word. और इसलिए खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें सारे मतन को पढ़ना और उसका मुतालिया करना बहुत जरूरी है। The third rule is the rule of context. जो तीसरा कानून है वो है मतन का कानून, जिसको मतन कहते हैं। So the meaning of a word must be gathered also around the context. अब देखें, अब ये बड़ी खास बात है कि आप जो मतलब देख रहे हैं वो मतलब मतन के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी कि वो उसके अंदर युगानगत होनी चाहिए और जो बाइबल कह रही है वो उसी हवाले से उसका मतलब निकाल लें। And in the light of the words that come before and the word that comes after. और आपने उसका मतन जो पहली आयत है और दूसरी आयत है उसके मुताबिक देखना है कि दर हकीकत पिछली और अगली आयत में क्या कहा जा रहा है और आपने उसी मतन के अंदर रहना है। And you know, you have people that make doctrines because they take one word out of the context. और देखें जरा आज बिदतें कैसे जन्म लेती हैं और कैसे मुख्तलिफ अकायद जन्म लेते हैं कि वो एक आयत को लेते और अपनी मर्जी से उसका मतन उसको अपने मुताबिक मोड़ते जोड़ते और नई बिदत या नया अकीदा मुतारफ कराते हैं। And if we take a word in its context, it will limit the interpretation or the meaning that we can give to it. लेकिन अगर हम मतन के मुताबिक उसका मतलब ले कि जो बाइबल कह रही है उसके मुताबिक ले तो फिर हम अपनी सोच कम इस्तेमाल करेंगे, अपनी समझ कम इस्तेमाल करेंगे और जो मतलब बाइबल कह रही है हमें बता रही है उसको ज्यादा अपनी जिंदगी में अमल पजीर करेंगे और अपनी जिंदगी में लेंगे। So we have the rule of definition, the rule of usage, the rule of context, and the fourth one is the rule of historical background. पहला हमने देखा तारीफ का असूल, दूसरा हमने देखा इस्तेमाल का असूल और तीसरा मतन का असूल और चौथा उसका तारीखी पस मंजर का असूल। एवलिन, कैन यू गिव मी जस्ट 2 minutes? I'm coming back. Yes. Just give me. Yes, please.
सॉरी यस सो मैं बता रहा था कि जो चौथा कानून है वो है तारीखी पस मंजर का कानून असूल के आप देखें कि उसकी तारीख क्या है उस हवाले के पीछे And then you have the fourth rule is the rule of historical background. और फिर ये चौथा रूल ये है जो हमें बताता है कि इस हवाले का तारीखी पस मंजर क्या था Meaning you have to understand the history of the people, the way they live, how they ate, the society, the different classes of people. इसका मतलब यह है कि आपको उन लोगों की तारीख के बारे में जानना है कि उनकी सकाफत क्या थी, वो खाते पीते क्या थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके दर्जात कैसे थे, वो किस तरह रहते थे। ये सब कुछ जो तारीख से मुनसब है या जुड़ा हुआ है, इस सब कुछ को भी आपको समझने और जानने की जरूरत है। Because to understand the spiritual principle, we have to understand where, in which society, in which background he had been given. और रूहानी असूलात को सीखने के लिए और उनको जानने के लिए जरूरी है कि हम जो तारीखी पस मंजर है उसको भी जाने कि उस वक्त में ये बात उनको किस वजह से या क्यों कही गई, वजह क्या थी। The fifth rule is the rule of logic. पांचवा जो कानून है, असूल है, वो है मंतक का असूल। Because interpretation is a logical reasoning. अब क्योंकि वजह यह है कि जोन सी उसका तर्जुमा है या जो उसका मतलब निकालना है, ये एक मंतक की काम है और मंतक के मुताबिक होना चाहिए। When we interpret the Bible, the use of reason is everywhere assumed. देखें, जब हम बाइबल का तर्जुमा करते हैं या उस हवाले का तर्जुमा करते हैं या तफसीर करते हैं, तो उसका इस्तेमाल वो क्यों हुआ, वो बड़ा मंतकी होना चाहिए, उसका मकसद होना चाहिए। The Bible was given to us in the form of human language and then appeals to human reason. और देखें, बाइबल हमें इंसानी जुबान में दी गई और इंसानी मकसद में दी गई, इंसान के लिए मकसद था, इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें दी गई। And we can apply all the laws of language and grammatical analysis. और हम सारे जो से जुबान के असूल या ग्रामरी असूल है, वो सारे असूल बाइबल के ऊपर लागू नहीं कर सकते। And it does invite to investigation. He invites to search. और ये हमें दावत देती है बाइबल मुकद्दस कि हम इसका मुतालिया करें, गहरे तौर पर इसको जानें और इसको परखें। Paul says that our mind must be renewed. So our mind is important in our Christian life and to understand the word of God. बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल क्या कहता है कि वो हमारी अक्ल को नया करता है, और अक्ल जो सी है वो नया होने का मतलब यह है कि हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी दोनों के लिए बड़ी जरूरी है, ताकि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उससे हमारी अक्ल नई होती चली जाए। And the sixth rule is the rule of precedent. और जो चौथा रूल, something that has come before, precedent. और चौथा जो छठा असूल वो ये है कि वो बात जो पहले कही गई है उसको अपने दिमाग में लेकर आना या उसको अपने सामने रखना। We cannot just invent another word where there was not something before. सुने, हम ऐसे नहीं कि कोई भी लफ्ज या कोई भी मतलब अपनी तरफ से निकाल दें जिसकी वाबस्तगी दर हकीकत असली बात के साथ या जो बाइबल का असल मीनिंग मतलब है उसके साथ ना हो। हमें कोई ऐसा नया लफ्ज या नया मैनी इजाद नहीं करना। In Acts 17, the Bereans were called noble because they searched the scripture to determine if Paul taught what Paul taught was true. और बरियन लोग जिनका अमाल की किताब में जिक्र है, उनको बहुत ही आजज, हकसार
और उम्दा लोग कहा गया। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की तलाश की, खुदा के कलाम के मुतलाशी हुए, और जो कुछ पलूस रसूल ने उनको सिखाया उन्होंने उसको जांचा, परखा और उसके अंदर और मेहनत की ताकि हम इसको और जाने। Yeah, it's like the idea that the Bible interprets the Bible. इसका मतलब क्या है? बड़ी खूबसूरत बात कि बाइबल अपनी तफसीर खुद करती है, मत बाइबल की तफसीर करे। You know, you have heard that when a person was condemned to death, you had to have 2 witnesses for it. अब देखें कि जैसे मिसाल के तौर पे जब जब किसी शख्स को उसको सजा दी जाती है तो उसके लिए 2 अशखास की गवाही या वो बहुत लाजिम है, या शहादत। And it's the same with the word in the Bible, or with an idea in the Bible. That idea in the Bible must have a precedent. You और have to इसी have, तरह बाइबल के अंदर भी ऐसे ही है कि आप ने जो जरूरी बात यह है कि जो बाइबल में पहले कहा गया है उस मतलब को तलाश करें, ना कि अपना नया मतलब इजाद करें। you know, you cannot build a doctrine on the verse and Judah went and hanged himself. आप कभी भी जो अल्फाज हैं उनको तब्दील नहीं कर सकते कि जैसे मिसाल के तौर पे यहूदा गया और उससे जाकर अपने आप को लटका दिया। We cannot take a word and not find something that will confirm the word. देखें, वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा मतलब निकाल लें जिसको खुदा का कलाम ही वो साबित नहीं करता। हमने वो मतलब निकाला है जिसको वाकई खुदा का कलाम और उसका हवाला वो साबित करता है और शहादत देता है। The 7th rule is the rule of unity. 7वां असूल बड़ा अहम है, वो है इत्तेहाद का, मुत्तहिद होने का असूल। What you want to interpret must be constructed with reference to the meaning of the whole Bible. देखें, जो भी आप ढांचा देना चाह रहे हैं मतलब को, जो भी आप मतलब उसका निकालना चाह रहे हैं, वो मतलब वो दर हकीकत वही होना चाहिए जो मतलब बाइबल हमें बताना चाह रही है। Meaning, an interpretation must be consistent with the rest of the scripture. मतलब और उसकी तफसीर बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे बाइबल के अंदर लिखा है और जो बाइबल कहना चाह रही है। So, we have an example famous with the doctrine of the Trinity. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक तस्लीस के जो अकीदा है उसके ताल्लुक से एक बहुत ही खूबसूरत और अहम मिसाल है, मशहूर मिसाल है ये। But not a single passage teaches Trinity in the Bible. लेकिन देखें जरा, बाइबल मुकद्दस में कोई भी ऐसा हवाला नहीं है जो हमें बराह रास्त तस्लीस के ताल्लुक से सिखा रही है। The word doesn't even exist in the Bible. और यहां तक कि ये जो लफ्ज है बाइबल में ये तस्लीस लफ्ज मौजूद भी नहीं है। But you will see लफ्ज की बात मैं कर रहा हूं। You will see when we will study Trinity that it is consistent with the teaching of the whole Bible. लेकिन सुने बात, लेकिन जब आप तस्लीस को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो सारी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तलीम है उसके अंदर आप बार बार तस्लीस को देख सकते हैं, बाप बेटा रूह कुद्दस के ताल्लुक से आप पढ़ सकते हैं। And we have the two pole, the Father, we have the Father, we have Jesus, and we have the Holy Spirit that are referred as a person, as God. और देखें, हमें नजर आता है बाप बेटा रूह कुद्दस, बाप खुदा बेटा यसु मसीह और रूह कुद्दस हमें नजर आता है, और फिर यसु मसीह जो कि इंसानी जमा भी लिए हुए हमें नजर आता है। And that the other side, the Bible is also full of teaching saying that there is only one God.
और फिर एक तरफ हमें ये नजर आता है और दूसरी तरफ हमें बाइबल मुकद्दस ये भी बार बार बताते नजर आती है कि सिर्फ एक खुदा है। So we have the challenge there. Is there one God, or is there God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? So we have फिर यहाँ पर हमारे लिए एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्दस है कि सिर्फ खुदा एक खुदा है। इस बात को समझने की हम कोशिश करें। But we will answer this question when we get to the Trinity. लेकिन ये बातों का जवाब हम उस वक्त ही हासिल कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं जब हम तस्लीस को समझेंगे। And the last rule is what we call the rule of inference. Influence? Yes. Influence? Inference. और जो सातवां असूल है वो है असर का असूल। It's inference is a conclusion that you draw about something that you know. इन्फ्लुएंस का मतलब या असर का मतलब यह है कि आप ऐसा नतीजा निकालें जिसका आपको पता हो या जिसके ताल्लुक से आपको आगाही हो। It's like drawing a conclusion for a given fact. इसका मतलब यह है कि आप वो जो हकीकत आपको बताई गई है या दी गई है उसके ऊपर कोई नतीजा निकालना, दी गई हकीकत के ऊपर नतीजा अहज करना, इसको आप कहते हैं असर। Now it's maybe where our thinking will be the most challenged. यहां पर हो सकता है कि जो हमारी सोच है वो उसको लिए बड़ा चैलेंज हो कि शायद हमारी सोच के मुताबिक उन बातों को उन हकायक को कबूल करना आसान ना हो। Now I'm going to give you one example. मैं एक मिसाल दूंगी। Matthew 4:5-7. मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। That's the temptation of Jesus. ये यीशु मसीह के आजमाए जाने बियाबान में आजमाइश के ताल्लुक से। Now there is a fact that is known, is that if someone throws himself from the top of the temple, he will fall. एक हकीकत है कि अगर कोई अपने आप को ऊपर बुर्ज से या हैकल से ऊपर नीचे फेंक देगा और वो नीचे गिर के मर जाएगा, यह हकीकत है। You might be killed. और या आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। So the devil put Jesus on the top of the temple and tells him, jump. और क्या लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि और यीशु मसीह को हैकल के ऊपर शैतान ले गया और उसने कहा कि यहाँ से नीचे छलांग मार या नीचे कूद। And the devil draws a conclusion that is totally different than the one Jesus is going to draw. लेकिन जरा देखें कि मसीह यीशु जो यहाँ पर नतीजा निकालने को है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हकायक अबलीस ने गढ़ने या बनाने की कोशिश की, उस पर यीशु मसीह का नतीजा बिल्कुल फर्क है। So we have a fact is that if you jump out of the temple, you might kill yourself. और हमारे पास हकीकत क्या है कि अगर तू अपने आप को इस हैकल के किंगरे से नीचे गिरा लेगा तो शायद तू मर जाएगा। And the inference or the conclusion can be two, can be double. जोन सा सुने जरा, जो नतीजा है या जोन सा असर है वो वहां पर दोहरा हो सकता है। The devil says if you jump, he will send angels to help you. अगर इब्लीस ने कहा कि अगर तू यहां से खुद को नीचे गिराए तो वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। That's the inference, that the conclusion that the devil is drawing out of the fact. और देखें जरा, शैतान यहाँ पर उस हकीकत के
बारे में नतीजा निकाला कि अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा और उसका असर then ये होगा. we have the conclusion of Jesus. He says, when you say that, you tempting God. लेकिन यीशु मसीह का नतीजा देखिए. यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तू ऐसा करता है तो लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर. So when we have facts in the Bible, sometimes we really draw conclusion. देखिए, जब हमारे पास बाइबल के हकीकत या हकायक होते हैं तो जरूर है कि हमें उनका नतीजा निकालने की जरूरत है. And those conclusions are really sometimes feel with what we live and how we understand things. Pardon me? And those conclusions, they really are drawn out of what we live and what we understand. और वो जो से नतीजा है वो कई दफा इस बात को बेहतर तौर पर साबित करता है कि हम कैसे जिंदगी गुजारे हैं और हमारा ईमान क्या है. So this is where our self has really to die so that we can understand Yes. a fact really as the Bible wants us to understand it. और सुनो जरा, ये वो जगह है जहां पर आपने अपने आप को अपनी जात को मारने की जरूरत है ताकि आप बाइबल के असली नतीजे को और बाइबल के असली हकायक को समझ सकें और अपनी सोच ना वहां पर लगाएं बल्कि बाइबल के सच को हकायक को मानते हुए आप नतीजा आहस करें. So we have reached, it's already 4:34. I think we हम have. ऑलरेडी 8:34 हो गए हैं. What time is it with you? It's 8:34. 8:34. Yes. So next time I will start with the bibliology. और अगली दफा हमने जो आज शुरू करना था अगली दफा हम करेंगे वो है बिब्लियोलॉजी, बाइबल के बारे में इल्म. And it's the doctrine of the word of God. और ये खुदा के कलाम के ताल्लुक से जो है वो हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या है. बड़ा खास मजमून है. And I think maybe that time you will have the text. और pardon me? Maybe are you going to translate or someone is going to translate the text? No, I'll translate. Are you translate? Yes, I will. Yes, for next week, right? If if you have time, yes, but you're really busy. No, next week you are okay. So you are talking about the translating of the notes. Notes, yeah. Yeah. Oh, okay. Yeah, no, that's I will not. Someone else, will do Okay. the translation. And I have. But for sure, I have put a little worksheet and some Yes. questions on for next time. sure. Too. We will. Yes, and we will definitely try to give it to send it to our students Yes. before class. Okay. Most definitely. Yes. So अगली दफा के जो नोट्स है खुदा उनके फजल से हम कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ता में आपको नोट्स दिए जाए और उसके एहतमाम के ऊपर आपको कुछ काम दिया जाएगा क्योंकि अब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपने इस दफा खुद काफी काम करना है जिसको जो कि बहुत आपके लिए अपने लिए बड़ा मौसर है. यस. Thank you very much. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. God bless you all. God खुदावंद bless आप you सबको all. बरकत दे. थैंक यू सो मच. Bye. Bye bye.